جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ نبیل بھائی سیمی پاشا صاحبہ موجود ہیں اور اب جناب کافی ٹیبل کا مطلب ہے دل کی بات, کیونکہ جب ہم بیٹھتے رل مل بیٹھتے ہیں دل کی باتیں ہی ہوتی ہیں. نبیل بھائی سمجھا کہیں تاش نہ نکال. اچھا جی نبیل بھائی بیٹھے اسی طرح دے میرا بھی موڈ بن گیا کیش نکالوں جیب سے. اچھا جی اس میں آپ نے اوتھ لینے کے جو کہوں گا اور جو کہوں گی دل سے کہوں گی, اس کے علاوہ اچھا دل سے نا, سچ تو نہیں ہے اور کیا رہتا ٹھیک ہے نا, جو کہوں گی کہوں گا دل سے کہوں گی, جو کہوں گی دل سے کہوں گی, سچ کہوں گی. ہاں چلے جو کہوں گا دل سے کہوں گا, کوشش کروں گا سچ. چلو جی اچھا ہم ڈرا زیادہ دیتے ہیں, اتنا ڈرانا سیگمنٹ ہوتا نہیں ہے اور پھر بعد میں نہیں بھائی کوئی پتہ نہیں نا, بعد میں نکل کچھ اور ہے. اچھا پہلا سوال آپ دونوں سے ہے کہ آپ کے خیال میں کیا ایک مشکل انسان ایک کھلی کتاب کی طرح ہے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ بتائیے. مشکل انسان کھلی کتاب کی طرح ہو نہیں سکتا. وہ اتنا مشکل کیوں ہوگا, ورنہ پڑھ کے سارے اس کو آسان کر لیں. ہو نہیں سکتا. ہاں وہ کیونکہ وہ کچھ وہ اللہ ہر طرح کی نفسیات ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو پازیٹیو لیتے ہیں, محرومیاں ڈفرینٹ لوگوں پہ ریئیکٹ کرتی ہیں, یا تو آپ کو اندر سے بہت بڑا کر دیتی ہیں یا آپ کو بہت وہ کر دیتی ہیں, ویک کرتے ہیں. لیکن مشکل انسان ہی نظر آتا ہے. اچھا وہ اپنے لیے بھی مشکل ہوتا ہے, دوسروں کے لیے بھی. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف دوسروں کے لیے مشکل ہوتا ہے, وہ اپنے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل میں ہوتا بھی ہے. ہاں اور مشکل میں بھی ہوتا ہے. آپ کی زندگی کا کوئی ایک فیصلہ جو آپ کو لگتا ہے کہ غلط فیصلہ ثابت ہوا اور آپ کو اگر دوبارہ موقع ملے تو آپ اسے صحیح کرنا چاہیں گے, تو وہ کون سا ہوگا؟ ٹو بی ویری فرینک, کوئی ایسا فیصلہ کبھی میرے ساتھ ہوا نہیں جو غلط ہوا ہو یا کسی پہ مجھے پچھتاوا ہوا ہو کسی چیز پہ. نہیں. کبھی ہوتا ہے نا غلط اے سی لگوا لی, ادھر نہیں لگوا لیتی, کوئی نہ کوئی جواب تو 7,000 ان چیزوں میں بھی نہیں ہوا. پتہ ان چیزوں میں اس لیے نہیں ہوا کہ بہت ساری چیزیں زندگی میں غلط ہو جاتی ہیں لیکن اس کو ہم اوور لک کر جاتے ہیں. اس کو میں نے کبھی دل میں لے کے اور دماغ میں لے کے بیٹھ کے اس کے بارے میں رونا پٹنا نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. ہاں تو نبیل بھائی آپ کو چلیں اس کو یوں کر لیتے کہ کوئی ایسا فیصلہ آپ نے لیا کہ آپ نے کہا کہ نہیں یار اس کا اتنا مزیدار رزلٹ نہیں ہے, اگر میں واپس جاؤں تو ہمیں کوئی پچھلے سال جو میں نے اے سی لگوایا, مجھے آج اس سال جب وہ خراب ہوا 6 ماہ بعد, تو مجھے لگا کہ یار یہ کیا میں نے غلطی کی ہے, جو کہ ہر سال مجھے فیل ہوتا ہے. اس کا آفٹر پرانا تھا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نا میری تھوڑی سی اور فلسفی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ایفرٹ کے بعد آپ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں, تو آپ کو راضی برضا ہونا چاہیے, ورنہ پھر ہوتا کیا کہ آپ بٹر ہوتے جاتے ہیں. تو آپ نے آپ کو بٹرنس, میرا جواب یہی تھا کہ ہوتی ہے بہت ساری آپ کو بٹرنس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. کریئر میں کوئی ایسی چوائس ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ مجھے اس طرح کے تو بہت سارے فیصلے ہیں. میں تو مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یار اچھا میں یہ نہیں کرتا, میں یہ کر لیتا. جیسے مجھے اگر آپ میں ایک سین اور کہہ رہے ہو, آج مجھے تم بولو یار وہ دھواں والا سین تو بڑا ہٹ ہوا تھا, آپ دوبارہ کرنا چاہیں گے, تو مجھے لگتا ہے یار اس میں 6-7 جگہیں ایسی تھیں کہ میں اگر دوبارہ کرتا تو میں اچھا اور کر سکتا تھا. تو یہ تو انسان کے اندر وہ ایک ہے, جب تک کام ہے یہ چلتا رہے گا کہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا تھا. اچھا آپ نے جو اتنی لمبی, دیکھیں آپ اپنا سٹ کام تو کرتے رہے نبیل بھائی, لیکن آپ نے باقی دوسرے ڈراما سے ایک بریک لی, تو کہیں آپ کو اس پہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بریک تھوڑی زیادہ لے لی؟ ہاں ایسا ہے کیونکہ بیچ میں آپ کو پتا ہے میں چینل لانچ کرنے بول انٹرٹینمنٹ میں نے لانچ کیا تھا, اور وہ 4-4.5 سال مجھے بالکل ایک الگ سے ایک فیلڈ میں جانا پڑا, اس کو ایز اے CEO میں نے لانچ کیا تھا, تو اس وجہ سے مجھے 5 سال تو میرے ادھر نکل گئے. اور پھر کیونکہ پروڈکشن میری چل رہی تھی 6-7, اس کو میں اکیلا آدمی مینیج کر رہا تھا, پورے کانٹینٹ کو میں خود مینیج کر رہا تھا. تو مجھے لگا کہ یار بیچ میں مجھے 1-2 سال بعد ایک کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ٹو بی آنیسٹ کامیڈی تو آپ کو بڑا مزہ دیتی ہے. اچھا دیکھیں میں ایک آپ کو بات بتاؤں بڑی چھوٹی سی, کہ یہ جو ایکٹنگ ہے نا, یہ میوزک جیسے ہے نا, وہ تھیراپی ہے, ایکٹنگ تھیراپی نہیں ہے. ایکٹنگ کی بات تھیراپی چاہیے ہو سکتی ہے. ہاں اس کی وجہ یہ کہ یہ آپ کی نروز کو اڑا دیتی ہے. مطلب میں گھر سے خوش گیا ہوں, میں نے گھر جاتے ہی آگے جا کے میں نے بیٹی کو, ابھی سیریل میں میرے لیے سب سے مشکل یہ تھا کہ مجھے بیٹی کو زہر دینا ہے. تو وہ اب آپ سوچیں نا کہ آپ بالکل آپ زمین آسمان کا فرق ہے آپ کے کیریکٹر میں اور جو کیریکٹر آپ پلے کر رہے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تو وہ یہ ایکٹنگ تھیراپی نہیں ہے, ایکٹنگ آپ کی نروز کو تباہ کر دیتی ہے. تو وہ کامیڈی میں آپ بڑا چل رہتے ہیں, سیریس ایکٹنگ میں, اور پھر اگر آپ سیریس ایکٹنگ کو اچھا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں,
देखिए सीरियस एक्टिंग होती क्या है, आप जो सामने वाला है, जो आप जिस बैठा हुआ है, उसको अगर आप मेक बिलीव में नहीं लेके जाते तो आप अच्छे एक्टर नहीं हैं। उसके लिए फिर आपको उसी रोल को पी जाना है। तो आपको कम से कम इस लेवल पे लेके जाना है कि जो सामने बैठा ना उसको ये लगे कि इस पे ये गुजर रही है, ये मेक बिलीव में लेके जाने वाली बात। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली अपनी नर्व्स के साथ खेलना और आपको फिर इमेजिनेशन में भी जाना, वहाँ पे हर चीज़ करनी होती है। अच्छा, तो हाँ, तो वही हमने फिर उसको इस सवाल को इस तरह से ले लिया। अच्छा, क्या टूटा दिल जुड़ सकता है या बस टूटे दिल के साथ रहने की आदत हो जाती है? बिल्कुल नहीं जुड़ सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि टूटे दिल के साथ आपको निभाने पड़ते हैं, लेकिन वो बात दोबारा कभी नहीं आ सकती है। अच्छा, मैं समझता हूँ, मेरा तो अलग पॉइंट है कि टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास। तो ये जो हम जिस फील्ड में हम हैं ना, इसमें जो है ना, वो तंदूर के करीब ही रहना चाहिए ताकि थोड़ी सी सेक मिलती रहे। और देखो क्रिएटिव आदमी क्या करता है, एक सिचुएशन जब किसी नॉर्मल आदमी का दिल टूटता है तो वो क्या करेगा, ड्रग्स में जाएगा, किसी और में जाएगा। क्रिएटिव आदमी अच्छा वो होता है जो उसी पूरी चीज़ को अपनी क्रिएटिविटी में डाल देता है। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे तो शायर है, आप कोई चीज बाकी को राइटर है, एक्टर है, पुख्तगी आ जाती है, वो बेहतरीन आपको उसमें आपको सपोर्ट मिलती है। मैं समझता हूँ इसलिए टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास। क्या आइडियल लाइफ पार्टनर का कोई वजूद होता है या बस ये एक ख्याली सी चीज है? 6 months की कहानी है, इसके बाद कुछ भी नहीं। अच्छा 6 months आपने रहे कि वो जो हनीमून टाइम होता है ना, उसके बाद जो जिंदगी की असलियत आती है ना सामने, लग पता जाता है सबको। आप बताइए। नहीं, मुझे लगता है यार ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। आपको ऑब्वियसली दोनों जगहों पे स्पेस देनी चाहिए। दोनों जगहों पे अगर आप बहुत आइडियलाइज करते हैं, ये बुकिश रिश्ता तो हो नहीं सकता। और बेसिकली अगर हम इसको एज ए उसमें रिलीजन में देखें या देखें तो बेसिकली इसमें आपने एक ख़ानदान डेवलप करना होता है। आपने एक ऐसी दरसगाह बनानी होती है जिसमें आपने बच्चों की परवरिश करनी होती है। और ये पूरा सिस्टम इसी तरह चल रहा है, रब का निज़ाम भी यही है। उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा वो हो जाएं, इसको कोई बहुत किताबी और वो आइडियलाइज कर लें, हो नहीं सकता। वो हो नहीं सकता। वो रिस्पेक्ट होगी जो टिल दी एंड चलती रहेगी। और मुझे लगता है मियाँ बीवी को मैं उसका कायल भी नहीं हूँ कि यार बंदा कहता ना यार मेरी अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाए मुझे, वो समझ गया तो रिश्ता खत्म हो गया। बेहतर ये पूरी जिंदगी एक दूसरे को समझते समझते निकाल दो। वो कौन है जिसे जिंदगी में हर कदम पर आप बहुत मिस करते हैं? मेरी जिंदगी में तो मेरे 4 पोते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह ने। उनको मैं जब शूट्स पे जाती हूँ 2-2 दिन नहीं देख पाती हूँ तो मैं उन्हें शदीद तरीके से मिस करती हूँ। क्योंकि बच्चों के बाद जो बच्चे हुए ना, तो मैं अपने बच्चों को तो भूल ही गई हूँ। तो वही मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, उनमें 4 पोतों में सब डिफरेंट साइजेस के हैं। तो उन्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस, और मैं किसी चीज़ को मिस नहीं करती। नवील भाई, आप किसको? मेरे पास यार पहला तो माँ है, हाँ माँ है, और फिर वालिद हैं। वालिद भी जल्दी चले गए थे, तो उनका मुझे मिस तो करना है। मुझे दुख ये है कि वो होता है ना कि आप यार कोई किसी अपने पेरेंट्स को जो है वो कंफर्ट में लेके जाएं। जैसे अल्लाह कहता है कि यार मैं उनको बुढ़ापे में उतना कमज़ोर कर देता हूँ तो जितना तुम बचपन में थे। तो इसलिए उनकी टेक केयर करना बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है वो, क्योंकि मैं मेरा हाल 21-20 साल का या 21 साल का था जब वाले चले गए थे। हाँ, अलबत्ता वालदा के हवाले से मुझे कुछ वक्त मिला कि मैं उनका ख्याल कर सकूँ। तो वो मुझे लगता है कि वो जो रिलेशन हैं वो ऐसे होते हैं, 2 माँ बाप के दुनिया में वाहिद 2 रिलेशन होते हैं जो बगैर मुफाद के होते हैं। मतलब ये कि वो कोई आपसे उम्मीद नहीं होती, बल्कि अगर बच्चा जो है वो जैसे मैं नालायकी था, घर से निकला उसमें, तो वो उनको ज़्यादा ख्याल होता है। मुझे आज भी याद है, मैं नया शुरू किया तो एक थिएटर मैं कर रहा था फैसलाबाद में, लेट ख़त्म होता था। तो माँ को बड़ा अच्छा पता था कि इसको ना अनार बड़ा अच्छा लगता, उन्हें सीज़न था। तो माँ मुझे याद है हमेशा निकाल के फ्रिज में रख देती थी, ये 2-2:30 बजे आएगा और ये खा लेगा। फिर एक दफ़ा मुझे याद है वो मैं बोल में गया तो बोल में क्राइसिस शुरू हो गया। आपने भी ज्वाइन किया था। जी जी, और आप तो रोक रहे थे मुझे। अच्छा, वो तो मुझे याद है, मुझे माँ की कॉल आई तो माँ मुझे कहने लगी बड़ा बना के ना कि अच्छा सुनो ये वो। अब वो मैंने मशवरा उन्हीं से किया था कि यार मैं इस तरह का अपने काम बंद करके एक चैनल ज्वाइन कर रहा हूँ। डिस्कवरी ये है कि यार मैं चैनल लॉन्च करूँगा। तो मैंने कहा ज़रूर करो, अच्छा है मेरे को। तो अब वो 4 माह बाद क्राइसिस हिट कर गए। तो मुझे कॉल करके कह रही हैं कि वो तो ये मुझे पता चला है, तो ये है। तो मैं उनको कुछ
एक जेब खर्च भेजता था, वो कोई ऐसा सच नहीं था एक, लेकिन था माँ के लिए। तो वो घुमा फिरा के मुझे ये बात करना चाह रही थी कि यार वो ना भेजा करो अब तो, मुझे पता तुम क्राइसिस में। मैंने कहा अल्लाह का वास्ता माँ, इतना नहीं है। वो मुझे लगा वो ये माँ ही हो सकती है, ओह सो ट्रू, माँ ही हो सकती है जो इस लेवल पे सोचने लगे। हालांकि वो ऐसी मोड़ नहीं है, मैं काम भी कर रहा हूँ, मेरे अभी 1-2 प्रोजेक्ट क्योंकि वो चल ही रहे थे, 1-2 प्रोजेक्ट बुलबुले तो चल ही रहा था। तो उसके बावजूद भी मुझे लगता है जिस लेवल पे माँ सोचती है ना, या बाप सोचता है, कोई नहीं वो नहीं सोच सकता। दुनिया में वैसा कोई नहीं कर सकता। अम्मी अबू की कोई ऐसी बात जो आपको अपनी टीनेज दौर में बुरी लगती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपको अंदाजा हुआ कि वो बिल्कुल सही है? हाँ, सुबह नहीं उठती थी स्कूल के लिए और दोनों डांटते थे कि उठो, और नहीं उठा जाता था। अम्मी आज छुट्टी कर लूँ मैं, वो बहुत बुरी लगती थी। और बाद में पता चला कि भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त बात थी। हाँ, कितना अच्छा डिसिप्लिन भी कर रहे थे। आप बताएं। नहीं वो मैं तो क्योंकि वो था क्या बोलें उसको, आवारा आदमी तो मुझे तो घर में ज़बरदस्ती धकेल के अंदर लाया जाता था। रात हो गई वाले सब कहते थे अब तो दरिया रुक गए, अब तो लेट जाओ तो वो था। और उस वक्त की चीज़ें जो हैं वो, मैं जैसे अब अपने बच्चों से कह रहा था कि मुझे लगता है मेरे अब्बा की रूह आ गई है। उसने वो कैसे? मैंने कहा मैं कह रहा हूँ ये लाइट ऑन की बिजली का बिल आएगा, पंखा बंद करो, ये करो वो करो, बिल तुम्हारे पास वो उस वक्त लगता था। और मुझे एक उनकी बात अभी भी याद है। मैं ना ग्रेजुएशन में एक हम कॉलोनी में रहते थे, तो दोस्त इकट्ठे होते थे बाहर। वो एक कॉलोनी थी, ऑफिसर कॉलोनी थी एक टेक्सटाइल की। तो वहाँ रात में ऐसे ही इकट्ठे हो जाते, वो एक एज होती, गपशप कर रही है वो सुबह। तो मेरा कमरा जो था वो छोटा सा लॉन था, उसमें खुलता था, तो मैं वहीं से लॉक करके निकल जाता। वापस आता था तो मेरे कमरे से कनेक्टेड अब्बा का कमरा था, एक तो इधर दरवाजा था, एक अब्बा के कमरे में था। तो मैं बहुत आहिस्ता से दरवाज़ा खोलता था। दरवाज़ा खोल के मैं जैसे ही पाँव रखता था तो उधर से दूसरी कुंडी खुलती थी अब्बा दरवाजे में। तो अब मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि 1 बज गया और अब्बा 9, साढ़े 9, 10 बजे सो जाते, सुबह फजर पे उठते थे, तहज्जुद पे। तो अब मैं कहता था अब्बा जी, वो पंजाबी में उनसे कहता था कि मतलब मैं इधर दोस्तों के पास ही बैठा था, सो जाते। तो कुछ नहीं कहते थे, टर्न लेते थे, अपने होंगे तो पूछूंगा, और ये बस सिर्फ इतना जुमला बोल के अपना दरवाज़ा बंद करके चले जाते थे। अब मैं उस जगह पे हूँ कि ओए 12 बज गए, अभी तक घर क्यों नहीं आए? तो वो बात याद आती है। बिल्कुल सही बात है। क्या ज़िंदगी के सख्त तजुर्बात आपको मजबूत बनाते हैं या फिर आपको बेहिस करते थे? बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, एक लेवल तक मजबूत बना देते हैं। जितने हर्डल्स आप ज़िंदगी में देखते हैं, जितने आपके सामने मास्क उतरते हैं लोगों के, आपको दुख तो बहुत होता है, आप हर्ट भी होते हो, आप रोते भी हो, लेकिन वही चीज़ फिर आप अपना पावर बना लेते हो कि ठीक है अगर ऐसा है। हमेशा से इतनी स्ट्रॉन्ग थी? मैं हमेशा से पैसेज ऑफ टाइम नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हमेशा से ही थी और रिस्क लेने वाली हूँ बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मैं, और क्विक डिसीजंस लेने वाली हूँ मैं। टाइम नहीं देती इतनी समझ ज़्यादा। तो इंसान को वाकई धोखे खाने, बादाम नहीं धोखे खाने के बाद ही आती है। ये है ज़िंदगी की कहानी। मुझे लगता है मदिया वो डिपेंड करता है सामने वाला जो जिस पे ये चीज़ें हो रही हैं वो ले कैसे रहा है। अगर वो ये भी कर देता है आदमी, बड़े उसको कमीना भी इंसान को कर देता है और इस लेवल पे भी कर देता है और मजबूत भी कर देता है, बड़े दिल का भी कर देता है। लेकिन जब वो कमीना हो जाता है ना नबील, तो वो अपने आप को ही हर्ट कर रहा होता है और अजियत दे रहा होता है। लेकिन हर आदमी जब अजियत से निकलना है ना अगर आपको, तो आपको वो फॉरगिव भी करना पड़ेगा और इग्नोर भी करना पड़ेगा। ये तो आइडियल सिचुएशन है ना। अब डिपेंड ये करता है कि जिस पे हो रही है वो क्या कैरेक्टर है कि उसको अगर आप हमसे पूछे करना क्या चाहिए, वो तो मैंने आपको बताया कि बातों का कब्रिस्तान होना चाहिए, दफनाएं और सो जाए। लेकिन नहीं बस में ना आपके सम टाइम नहीं होता, लेकिन उसमें डिपेंड ये करता है कि आपका, देखिए मैं टू बी ऑनेस्ट, आपका अपने क्रिएटर से ताल्लुक कितना पक्का है। बिल्कुल वही तो पावर देगा क्रिएशन आप ज़हन में रखना है सारी जिंदगी के, हम क्रिएशन हैं। बिल्कुल हम आप क्रिएटर वाली जगह पे ना जाएं। हाँ, हम हमारे पास अथॉरिटी नहीं। कुछ जगहों पे तो अल्लाह ताला ये भी समझा देता है ना आपको, जब आप इंसान के पीछे भाग रहे होते हो कि जितना भागना है भाग लो, इसी से डोज दिलवाऊंगा तुम्हें। फिर जब वो डोज देता है तो फिर अल्लाह आपको ऐसे याद आता है कि हम इतना अगर अल्लाह के लिए कर लेते, उसके पीछे इतना भाग लेते, तो आज इस पोजीशन पे नहीं होते। ट्रू। आपके लिहाज से आज के दौर में कामयाब इंसान कौन है? नबील तुम पहले बताओ। अच्छा मैं बता देता हूँ। मुझे लगता है मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जो कामयाब एक्चुअली समझ नहीं सकते आदमी जो ज्यादा खुश है ना वो कामयाब है। बिल्कुल। अब उसमें क्राइटेरिया
पैसे का मेरे नज़र में नहीं है, टूल हो सकता है। मैं उस पैसे को हमेशा टूल समझता हूँ। मुझे लगता है हमें अपने बच्चों को जो है ना वो खुश रहना सिखाना चाहिए कि खुश कैसे रहना है। जो इस वक्त अलमिया है ना वो इतना ख़तरनाक है, मैं भी शायद इसी क्राइसिस में हूँ और हमारी आने वाली नस्ल भी शायद इसी क्राइसिस में है कि वो एक दौड़ में लग गई है, वो उसको ये नहीं समझ आ रहा कि खुश कैसे रहना है। हम समझते हैं कि यार हमें चीज़ें खुश रखती हैं, नहीं रखती चीज़ें, खुश नहीं रखती। वो 1 घंटे के लिए होती हैं खुशी कि आपने शॉपिंग कर ली, आपने अपना डिप्रेशन दूर कर लिया, आप डिस्टर्ब हैं, आप जाके बिलियनेयर का मैं सुन रहा था, उसके एडवाइजर का एक, उसने कहा वो मुझे उसने कहा यार मैं आई एम नॉट हैप्पी, आई एम अनहैप्पी। उसने कहा अच्छा काम करो, फुटबॉल की टीम खरीद लो। उसने टीम खरीदी, पूछा, उसका नहीं वो मज़ा नहीं आया, ठीक है इट्स ओके, जहाज़ बड़ा ले लो, उसको ले लिए। कह रहा उन्हें उसको ना बड़ा वो बेत कह रहा। उसके बाद एक जगह कोई सीरिया में कोई बच्चे थे, उनके कोई इवेंट पे मैंने उसको कहा साथ चलोगे, हमारी तरफ से हम उसको व्हील चेयर्स दे रहे हैं बच्चों को। हाँ। उसमें खुशी में। तो वो कह रहा उसमें ले गया उसको, तो व्हील चेयर दे रहा था, तो एक बच्चा था जिसकी वो टांगे बेचारे की हो चुकी थी, तो उसने उस बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो उसने पूछा कुछ और चाहिए, ये बिलियनेयर जो है कह रहा मैं एडवाइज़र, कह रहा मैं साथ था। तो उसने पूछा उससे, तो उसने कहा नहीं मैं ना तुम्हें ना तुम्हारे फेस को देखना चाह रहा हूँ और पहचानना चाह रहा हूँ, ताकि अगर मैं जब हेवन में तुम्हें मिलूंगा मैं तुम्हारा वहां भी शुक्रिया अदा करूंगा। कह रहा वो उस दिन वो जो है मुझे फील, कह रहा वो बाहर आके उसने कहा यार मैं आज मुझे खुशी तो इसी ये मुझे आज फील हुआ है कि यार खुशी ये है बेसिकली। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप गिवर हैं तो उसमें खुशी ढूंढना भी बड़ा वो है। ट्रू, बहुत सही बात है। अच्छा जी, आपकी शख्सियत सबके साथ एक जैसी है या आपके सामने वाले को देखकर फैसला करते हैं कि मुझे इसके साथ कैसा बर्ताव करना है? मैं तो करती हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। मैं तो ऐसी हो जाती हूँ जैसे मैं हुई नहीं रूम में। और सही मशहूर भी है मेरे पास, और जहाँ मेरा दिल मिल जाए तो फिर वहाँ मिल जाता है। अच्छा नहीं ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आपकी शख्सियत सबके साथ एक जैसी है या फिर आप सामने वाले को देखकर फैसला करते हैं? अच्छा हाँ, नहीं वो तो देखिए डिपेंड करता है ना कि कौन किसको किस तरह आपको मिल रहा है। और अच्छा मैं क्योंकि मैं भी वो बंदा नहीं हूँ कि बहुत स्पीड में लोगों के साथ मिल जाऊँ ना, जहाँ अब मुझे मैं हालांकि शोबिज़ में हूँ, होना तो ये चाहिए, मुझे सोशल होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूँ। हाँ। मुझे पसंद के लोग समझ आते हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि नबील भाई का ना, कि जो नबील भाई ने जो अपना इतना वो जो कैरेक्टर भी किया ना, तो सबको लगता है, और मैंने खुद शादियों में एक इवेंट में देखा है कि बच्चे समझते हैं कि ओ नबील, जैसे हमारा कोई दोस्त है, और मैंने बाकी बच्चों के चेहरों पे स्माइल और देखी है। बड़े हो गए जी। मैं एक छोटी सी नाम ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक सवाल जो मैं और इनसे पूछना चाहती थी, खैर हमारा सेगमेंट तो ख़त्म हो गया,